Good morning, guys, and we'll continue with the chapter that we were doing, that is capital budgeting. Last lecture when I left you, I guess I was at question number 25, and हम लोग एक concept discuss कर रहे थे, और concept वहीं से start करेंगे, NPV versus IRR, और हम लोग एक conclusion पे पहुँचे थे कि NPV is a better concept or IRR is a better concept. So finally we went ahead with what? NPV. So we'll continue with question number 26. Question 26 on your sheets. Decision अभी भी यही लेना है हमें कि NPV और IRR. That's the funda. Question 26. The cash flows of project C and D are reproduced below. Project C cash flow year 1, CO is year 1, 10,000 minus, then C1, C2, C3. Project D minus 10,000, C1, C2, C3. NPV at 10%, 4139. NPV as 3823. IRR. The best part, guys, इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो NPV और IRR दोनों दिया हुआ है हमें. NPV of C is 4139 and D is 3823 and IRR is 26.5 and IRR is 37.6. हमें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, पता नहीं. Why is there a conflict in ranking? Why is there a conflict in ranking? Because I can see, guys, that NPV project C का अच्छा है और IRR project D का अच्छा है. So there is a conflict. Why should you recommend project C in spite of lower internal rate of return? प्रोजेक्ट सी क्यों रिकमेंड करना चाहिए? तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पे जो डिस्कशन चल रहा था एनपीवी अच्छा है या आईआरआर अच्छा है, वो सॉल्व भी हो गया. आई गेस आंसर आपके सामने है कि एनपीवी अच्छा है. उन्होंने कहा है कि हमें प्रोजेक्ट सी सिलेक्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज एनपीवी इज़ अ बेटर सिलेक्शन क्राइटेरिया. करेक्ट है कि नहीं? एक और चीज़, अभी इतना कुछ पूछा है तो देखो एक बार ज़रा, थोड़ा कॉमन सेंस भी वर्कआउट करें. द बेस्ट पार्ट अबाउट बोथ द प्रोजेक्ट्स हियर इज़, प्रोजेक्ट सी अगर आप देखो तो 10,000 जा रहा है, 2, 4, 12. वी आर गेटिंग 2, 4 एंड 12. एंड प्रोजेक्ट डी पे 10,000 जा रहा है एंड वी आर गेटिंग 10, 3 एंड 3. कैश फ्लोज का पैटर्न देखो. प्रोजेक्ट सी इज हैवी इन थर्ड ईयर, प्रोजेक्ट डी इज हैवी इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. कैन यू सी दैट? हैव अ लुक एट दिस. मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो, दैट इज व्हाट दे हैव गिवन इन द आंसर ऑल्सो. क्वेश्चन 26 कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन 26 प्रोजेक्ट सी की बात कर रहा हूं मैं. एंड हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव इन प्रोजेक्ट सी? 3 years. द कैलकुलेशन फॉर प्रोजेक्ट सी फॉर 3 years. ईयर 1, 2, 3. कैश फ्लो, DCF. The rates they have given to you in the question: 10%, 14%, 15%, 30%, 40%. DCF 10%, 14%, DCF 15%, DCF 30%, and the DCF 40%. I'm just looking at the calculations that they are trying to prove and show it to us. Cash flow that I can see is 2,000, 4,000 and 12,000. DCF at the rate of 10%. Discounting factor is given to you. So first one 0.909 calculate करेंगे आप. First one 2,000 into 0.909. Is it 1818? Next one 4,000 into 0.826. 3306 दिख रहा है मुझे, चेक कर लो फिर से एक बार. 4,000 into 0.826. 4,000 into 0.826. And last one 12,000 into 0.751. 9016 आ रहा है. चेक करो फिर से आप
12,000 into 0.751. मजाक कर रहे हो आप? टोटल करो. Now I've kept this calculations ready. I'll just fill up the table. 14140 आ रहा है और हमारा PV outflow है 10,000. So I'm getting 4140 का NPV. Can you see that? 4140 का NPV कौन सी रेट पे? 10%. That's what they are saying. It's 4139. कहीं पे conversion थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पे 1 rupee. Next, at 14%, I'm showing the amounts of 1754. Then we have 3078. Then we have 8100. And we have 12,392 minus 12,932, sorry, minus 10,000. So I am having an NPV of 2932. Next one at 15%, 1739. Next one is 3024. The next one is 7890. So the total comes to 12,653. Minus the outflow of 10,000, we have the answer of 2653. 30%, 1538. Next one 2367. The next one 5462. Total 30% पे 9367, and we have it 10,000. That gives me a negative 633 का NPV. Negative. Last 40% पे amounts 1429. Discounting rate 40%. 2041. 4373, and we have the answer in 7843. Minus 10,000, I'm getting a negative NPV of 2157. आपके पास बुक है, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं यहाँ से. ये कौन से प्रोजेक्ट की कहानी बनाई मैंने? प्रोजेक्ट सी की. नेक्स्ट वन प्रोजेक्ट डी. एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस. year 1, year 2, year 3, exactly same flow पे. Cash flows that I can see are 10 3 3, 10 3 3. First one discounting factor के हिसाब से 9090, that is 9090. Next one 2479, and the last one 2254. इन सब का टोटल मुझे दिख रहा है 13823 minus the 10,000. I'm having an answer of 3823 का NPV. NPV 4140, NPV 3823. कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है? At 10%. At 10%, I guess we will go ahead with project D. Sorry, we will go ahead with project C. Is it clear? Next, 14% पे काम करेंगे. So we have the answer 8772. We have the answer 2309, and we have the answer of 2025. So my total comes to 13,106 minus 10,000. I have the answer 3106. Uska NPV. So I guess now my project D is better. Next, 15% पे calculation. 15%. 8696. Second 2268. Third 1973. The total 12,937 minus 10,000 is 2937. 2937 2653. I guess project D is better. 30% पे 7692, 1775, 1366. Total 10,833. 10,000 पॉजिटिव NPV ऑफ 833. जबकि ऊपर का आंसर तो अपना ऑलरेडी नेगेटिव चला गया है. प्रोजेक्ट डी इज बेटर. फाइनल @ 40%. 7143, 1531,
and 1093. So total is 9767 minus 10,000. We have a negative NPV of 233. 233 negative, huh? Not the positive, this is negative. So I guess here also project D is better. Yes or no? What am I telling you in this thing? Actual NPV, they told you in the question, at 10%. NPV at 10%. Now look at this. Project C and Project D, they have already given you a NPV at the rate 10% is 4139 for Project C and 3823 for Project D. तो इसके हिसाब से हमें C कलेक्ट करना चाहिए. Yes or no? IRR for Project C, अगर हम IRR देखें, IRR is the rate at which NPV will become 0. ये सारे NPVs के कैलकुलेशन किए मैंने यहाँ पे. NPV पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, 15 और 30% के बीच में कहीं पे होना चाहिए आपका IRR. उन्होंने आंसर दे दिया हमें. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. उन्होंने आंसर दे दिया. हम एनालिसिस कर रहे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए. They have told me the IRR of the project is 26.50, but you should understand कि वो ये बीच में आ रहा है 26.50. यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव, 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 नेगेटिव. तो इसका IRR कहीं पे 30 और 40% के बीच में होना चाहिए. 30 और 40% के बीच में. Check out the answer. They are telling you it is 37.60%. According to IRR, I should go ahead with Project D. According to NPV, I should go ahead with Project C. According to IRR, I should go ahead with Project D. There is a conflict because according to NPV, C अच्छा है. According to IRR, D अच्छा है. There is a conflict. A little bit of analysis. ऐसा क्यों हो रहा है? Project C, अगर आप देखेंगे, तो इनका जो कैश फ्लोज आ रहा है, वो बॉटम हैवी है. सबसे मेन कैश फ्लो इसका थर्ड ईयर पे आ रहा है और थर्ड ईयर पे सबसे मैक्सिमम डिस्काउंटिंग रेट लगेगा. यस और नो? सो एट 10% सी अच्छा है, एट 10% डी अच्छा नहीं है. इसके कैश फ्लो टॉप हैवी है. सबसे मैक्सिमम इसका कैश फ्लो फर्स्ट ईयर पे आ रहा है. अभी सबसे मैक्सिमम कैश फ्लो अगर फर्स्ट ईयर पे आ रहा है तो ये सबसे कम डिस्काउंट हो रहा है. अब क्या हो रहा है मालूम है? अगर 10 से 14% पे जाऊंगा तो मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ा रहा हूं. बट डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ साथ व्हाट इज हैपनिंग, इसका थर्ड ईयर का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंटिंग रेट लगेगा. तो अमाउंट इज डिस्काउंटेड फार मोर. अभी आप यहां पे देखो, इसका 10,000 था, इसको एक साल में डिस्काउंट किया तो 8772 आ रहा है. बट ये 12,000 को हमने 14% पे थर्ड ईयर पे डिस्काउंट किया तो 8,100 आ रहा है. जस्ट दिस टू अमाउंट्स विल टेल यू द स्टोरी. जस्ट दिस टू अमाउंट्स. यहाँ पे तो मैं 12,000 को डिस्काउंट करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10 को डिस्काउंट करा रहा हूँ. अगर 10 को डिस्काउंट कर रहे हैं तो आंसर और कम आना चाहिए. पर ये फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है. जैसे जैसे आगे डिस्काउंटिंग फैक्टर और बढ़ते जाएंगे, व्हाट विल हैपन, यू नो, हमें डी ज्यादा अच्छा लगता रहेगा बिकॉज इसका 12,000 का मल्टीप्लायर इफेक्ट जाएगा डिस्काउंटिंग में. सो यू कैन सी ऑलवेज 10 सी अच्छा था, डी अच्छा है, डी अच्छा है. Higher the discounting rate, D will be far better. Correct? But they are telling you, why should I select C only? पहले तो आप अग्री करो कि मुझे C सिलेक्ट करना चाहिए. और मेरा क्वेश्चन है कि C क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? Because NPV is always a better criteria. IRR suffers from a disadvantage of रीइन्वेस्टमेंट, अमाउंट रीइन्वेस्टमेंट. एक्चुअली प्रोजेक्ट चलता कैसे पता है आपको? ये देखना है यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर पे. ना हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट ईयर हमें 2,000 मिला, वो बिजनेस में वापस जाएगा. सेकंड ईयर 4,000 मिला, वो बिजनेस में वापस जाएगा. थर्ड ईयर 12,000 मिला, वो बिजनेस में वापस जाएगा. रीइन्वेस्टमेंट होगा. ईयर द रीइन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस एट द रेट 10%. एक्चुअल अपना पैसा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज इट 10% और इज इट IRR? इट्स एनपीवी का जो रेट है वो हमें 10% पे मिला है. तो री इन्वेस्टमेंट भी कौन से रेट पे होना चाहिए? 10% पे.
Are we clear with that part? But अगर मैं IRR बोलूँ तो what will happen here in project C, reinvestment will take place at 26.5%, reinvestment will take place at 37.6%, but actual money has come at what? 10. First, 1, 2, 3. Year 1, year 2, year 3, end. This is how it happens. Project में पहले -10,000 लगाया, 2,000 वो री इन्वेस्ट होता है, 4,000 आया वो री इन्वेस्ट होता है, 12,000 ये री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बिकॉज प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. 2, 4, 12 यही लिखा है ना प्रोजेक्ट 1 का. और ये सारे पैसे यहां पे जमा होके हमें बाहर मिल जाते हैं. प्रोजेक्ट खत्म, यहां पे पैसा डाला, यहां पे प्रोजेक्ट पैसा आउट. दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट एक्चुअली वर्क्स. क्लियर है? पहले 10 डाला था, 2 फर्स्ट ईयर आ रहा है पर हम निकालते नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में ही चला जाएगा. तो IRR बोलोगे ना तो री इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट 26.5, 37 पॉइंट दिस, बट आई हैव नॉट गॉट द मनी एट दोज रेट्स. I should always take NPV as a selection criteria. So a person should always select the project which has got a better NPV, and in this case I should select project C. Are we clear? Final answer, we should go ahead with project C because it is NPV is a better selection criteria as compared to whom? IRR. Full stop. Clear? Just copy them first and we can go ahead with question number 27 after this.
So we're done with question number 26. Chalo, I can go ahead with question number 27 now. Question 27. First, consider the following mutually exclusive projects. Cash flows, project A, project B, project C, project D. Minus 10, minus 10, minus 3,500, minus 3,000. Cash inflow, A का year 1, year 2, year 3, year 4. B 1, 2, 3, 4, C 1, 2, 3, 4 and D also 1, 2 में कोई cash flows नहीं है, 3 and 4. Too good. Calculate payback period for each project. If the standard payback period is 2 years, which project will you select? Will your answer differ if the standard payback period is 3 years? If the cost of capital is 10%, compute the discounted payback period for each project. Which project will you recommend? If standard discounted payback period is 2 years or 3 years. Compute NPV of each project. Which project would you recommend on NPV criteria? The cost of capital is 10%. What will be appropriate choice criteria in this case? The PV factor for 10 years are, first, year 1, 2, 3, 4. PV factor at 10% is equal to 0.9091, 0.8264, 0.7513 and 0.6830. Is it correct? चलो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. Let's take them one by one. Question number 27. So first things first. सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं मैं पहले. 27 कर रहे हैं हम लोग. They are asking you payback period for each project. So 1, payback period. First, payback period की अगर हम लोग बात कर रहे तो सिर्फ payback पूछा है, discounted payback भी नहीं पूछा. प्रोजेक्ट 1 में कितना पैसा गया आपका? 10,000. कितना आ रहा है? फर्स्ट ईयर 6, second year 2, 6 plus 2, 8, third year 2, 8 plus 2, 10. I guess we are getting the money in 3 years. So payback period project A का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्लीन दिख रहा है. We are getting our money back in 3 years. Next, project B, we have spent 10,000, 1, 2,500, 2, 2,500 and 3 is 5,000. So 2,500, 2,500 and 5,000, we are getting 10,000. Again, project B का भी payback period 3 years exact है. Correct? C, first year 3,500, second year 2,500, 1,500 plus 2,500, 4,000 हो जाएगा. हमें 4 नहीं चाहिए, हमें exactly 3,500 वापस चाहिए. सो प्रोजेक्ट सी का पेबैक पूछ रहा हूँ मैं. प्रोजेक्ट सी का पेबैक आपका होगा 1 क्रॉस हो गया 1 प्लस फर्स्ट ईयर में मुझे 1,500 मिला है, सेकेंड ईयर में 2,500 आ रहा है पर मुझे सिर्फ 2,000 चाहिए. सो 1 प्लस 2,000 कैसे आया ये 2,000? 3,500 माइनस 1,500. आई वॉन्ट 2,000 रुपी मोर आउट ऑफ 2,500. ये तो फर्स्ट टाइम से हम लोग किए जा रहे हैं. सो 2,000 डिवाइड बाई 2,500. 2,000 डिवाइड बाई 2,500 plus 1 1.8. So I am getting 1.8 years as my payback period for project C. Project D 3,000 गया, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं आया, सेकेंड ईयर कुछ नहीं आया and third year we are getting 3,000 again. So guys, project D, we are getting our money back in 3 years. 3 years, 3 years, 1.8 years, 3 years. Is it clear? Continuation. Question number 2. This is payback. If the standard payback period is 2 years, which project will you select? Will your answer differ if the standard payback period is 3 years? If the standard payback period is 2 years, कंपनी ने स्टैंडर्ड बना के रखा है कि दे विल सिलेक्ट ओनली दोज प्रोजेक्ट्स जिसका पेबैक पीरियड मैक्सिमम 2 years हो. दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टैंडर्ड पेबैक.
2 ईयर से ज़्यादा होता तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे. स्टैंडर्ड इज 2 ईयर्स. तो अगर स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड 2 ईयर्स है तो आई गेस ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा. कैन आई एक्सेप्ट प्रोजेक्ट सी? ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. माई आंसर इज आई विल सिलेक्ट ओनली प्रोजेक्ट सी. अभी करेक्ट? पक्का? नेक्स्ट, what if my standard payback is 3 years? If my standard payback is 3 years, A okay, B okay, C okay, D okay, I can select all the projects, all A, B, C, D. Will your answer differ if the standard payback period is 3 years? Yes, I can select any of the 4 projects, A, B, C, D. Clear? Too good. So payback, standard payback. Third one. If the cost of capital is 10%, compute the discounted payback period for each project. Which project will you recommend if the standard discounted payback is 2 years or 3 years? If the cost of capital दिया है, मैं directly नहीं calculate करूँगा because मुझे DCF की ज़रूरत पड़ेगी. So क्वेश्चन 3 सॉल्व करने के पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट का DCF निकालना ज़रूरी है. ईयर 1, 2, 3, 4 साल के प्रोजेक्ट्स है सारे. प्रोजेक्ट ए, चलो आप कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ. प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, DCF @ 10%. डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 9091. सो फर्स्ट थिंग, चलो 6000 इंटू 0.9091, बोलो कितना? 5455. नेक्स्ट वन, सेकेंड कैश फ्लो 2000 इंटू 0.826, 8264, 53 हो जाएगा. नेक्स्ट वन 2000 इंटू 0.7513, 1503 हो जाएगा सर. एंड द लास्ट वन इज 12,000 इंटू 0.6830, 8196. टोटल कर दो सर, आप चेक करो 8196 फिर से. मेरे को 8193 मिल रहा है. 12,000 इंटू 0.6830 कितना? 8193 क्यों आ रहा है मेरा आंसर? 12,000 इंटू 0.6830, 8196. टू गुड. अभी आप ये सब का टोटल करो. पक्का? 16,807. ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट वन. चलो बी का कैलकुलेशंस करो. अभी कैलकुलेशन मेरे साथ करो. मैं क्या कर रहा हूँ पता है? बी सी डी सब कुछ एक साथ में, बिकॉज डिस्काउंटिंग फैक्टर तो फर्स्ट ईयर का सेम रहेगा ना. सी माई कैलकुलेशन 0.9091 इंटू 2000 इक्वल टू 1818.2. सॉरी, सेम वही रखो, ज़ीरो मत करो. क्यों कर दिया? 0.9091 इंटू अभी ज़ीरो कभी मत उल्टा करना. 2500 इक्वल टू 2272.75. मतलब क्या हो जाएगा? 2273 हो जाएगा. ओके, सेम एक बार 1500 इक्वल टू, कुछ भी प्रेस नहीं करना. 1500 इक्वल टू 1364. और प्रोजेक्ट डी तो फर्स्ट ईयर कोई पैसा ही नहीं आ रहा है. करेक्ट है. चलो अब ज़ीरो करो फिर से. कैल्सी में ज़ीरो,
the calculation now. 0.7513 into 2500 1879 नहीं कुछ गलत आ रहा है, फिर से एक बार करो, ज़ीरो कर दो. 0.8264 इंटू करेक्ट है 2500 2066. यहाँ पे भी आंसर 2066 बिकॉज सेम है और डी में कोई पैसा नहीं आ रहा है. परफेक्ट एकदम. चलो फिर से 0.7513 5000 3757 हो जाएगा. अभी कुछ प्रेस मत करना, जो मैं अमाउंट बोलूँगा उसी से 500 इक्वल टू दैट इज 376. नेक्स्ट अमाउंट 3000 इक्वल टू दैट इज 2254. वेरी गुड. चलो लास्ट वन 0.6830 इंटू 7500 5123. वेरी गुड. नेक्स्ट कैलकुलेशन 5000 equal to 3415. Very good. And the last one is 6000 equal to 4098. चलो अभी टोटल करते हैं. फर्स्ट वन 2273 प्लस 2066 प्लस 3757 प्लस 5123 219. वेरी गुड. नेक्स्ट वन सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन. लास्ट ईयर 210 513 6352 मैंने लास्ट कर दिया. 72 एक बार चेक करो फिर से. 1364 प्लस 2066 प्लस 376 प्लस 3415 मेरे को 7221 आ रहा है. परफेक्ट है. चलो अब ये DCF मिला हमें, ठीक है ना. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से. क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूं मैं. उन्होंने कहा था इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% कंप्यूटेड द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट. फिर से डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट करना है मुझे. आंसर नंबर 3 पे है डिस्काउंटेड पे बैक. कितना पैसा वापस चाहिए. प्रोजेक्ट ए में कितना पैसा गया है हमारा. इज इट 10,000 गॉन. चलो सर कैलकुलेटर फिर से हाथ पे. 5455 प्लस 1653 प्लस 1503 कहाँ पहुंच गए. अभी उसमें 8196 ऐड करेंगे तो आई गेस 10,000 क्रॉस हो जाएगा. तो हम क्या बोल रहे हैं 3 प्लस आपके कैलसी में जो भी अमाउंट है माइनस 10,000. 1389 और चाहिए हमें आउट ऑफ 8196. कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. 3 साल का कैश फ्लो प्लस 1389 और चाहिए था 10,000 पहुंचने के लिए. डिवाइडेड बाय द अमाउंट दैट इज 8196. करेक्ट है कि नहीं. चलो कैलकुलेशन 1389 divided by 8196 1389. wait a minute. 1389 divided by 8196 plus 3 कितना आ रहा है आपका आंसर. नहीं 3.17 years is equal to 3.17 years. that's A का आंसर. बी प्रोजेक्ट बी में कितना पैसा गया है 10,000. फर्स्ट वन 2273 प्लस 2066 प्लस 3757 हम 8096 पे पहुंच गए.
सो ये भी 3 ईयर क्रॉस कर रहा है, प्लस 8096 प्लस माइनस 10,000 बोल रहा हूँ. आई नीड 1904 आउट ऑफ 5123. 1904 divided by 5123 plus the 3 plus the 3 प्लस करना मतलब बेसिकली माइनस करना था आपको. आई एम गेटिंग 3.37 years. करेक्ट है? ओके. सी, प्रोजेक्ट सी की बात करें. प्रोजेक्ट सी में कितना पैसा गया है हमारा? प्रोजेक्ट सी में गया है 3500. फर्स्ट ईयर 1364 प्लस 2066 मतलब 3430 तो आ गया, तो अपना 2 प्लस होगा माइनस 3500. 70 रुपी और चाहिए आउट ऑफ 376. सो 70 डिवाइडेड बाई 376 और प्लस 2 करना. ओए वापस वही कर दिया, तेरा आंसर माइनस था, वापस तू प्लस करेगा तो उल्टा हो जाएगा. माइनस होगा तो माइनस करो. 2.19 ईयर्स आ रहा है मेरा आंसर. 2.19 years. And the last one is project D. प्रोजेक्ट डी में कितना पैसा गया है? 3000. फर्स्ट ईयर कुछ नहीं. डोंट मेक अ सिली एरर ऑफ नॉट काउंटिंग दिस ईयर. फर्स्ट ईयर कुछ नहीं, सेकेंड ईयर कुछ नहीं, थर्ड ईयर 2254. सो 2254 तो आ चुका है. 3 प्लस आई वॉन्ट 3500 माइनस 2254. आई वॉन्ट 1246 आउट ऑफ 4098 divided by 4098 plus 3. I'm getting 3.30 years. 3.30 years. करेक्ट है? जकास. क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? They said, which project would you recommend if your standard payback period is 2 years? Continuation. स्टैंडर्ड पेबैक अगर 2 years है तो विच प्रोजेक्ट विल यू सिलेक्ट? नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड. नो प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड. नो प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड. पूरा क्वेश्चन पेबैक पे खेल रहा है हमारे साथ. ओके, व्हाट इफ योर स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड इज 3 years? स्टैंडर्ड पेबैक is 3 years. Project A not selected, B not selected, C selected, D not selected. Standard payback is 3 years. Project C will be selected. Project C will be selected. Do you agree with that? सही जा रहा है? Too good. Last one, question number 4. Compute NPV of each project. Which project will you recommend on NPV criteria and the cost of capital is 10%? NPV. This is question number 3 का आंसर. Question number 4 का आंसर NPV is equal to PV inflow minus PV outflow at the rate 10%. A, B, C, D. Project A का inflow यहाँ पे है 16,807 minus 10,000, 6,807. Project B 13,219 minus 10,000, 3,219. Project C 7,221, whereas we needed how much? 7,221 का outflow था 3,500. सर चेक करो, 7,221 minus 3,500. 3,721. And last one, project D 6,352 minus 3,000. 3,352. जगास. कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे हम लोग? रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 according to NPV. Basically, I should go ahead with project A as the selection. Are we clear? Too good. Please copy this.
Are we done, guys, with question 27 then? Chalo. We'll go on question number 28. But as you can see the title, this question actually belongs to asset replacement decisions now. Basically इसे हम title देते हैं जिसे हम कहते हैं replacement decisions. Now what is this, कि यहाँ पे हमारे पास एक asset है और हमें ये decide करना है कि हमें ये asset को replace करके एक नया asset ले कि नहीं. That's what we need to think. एक asset है और हम सोच रहे कि asset को replace करके एक नया asset ले कि नहीं. Thinking चल रहा है. So what can we do? This is known as replacement. यहाँ पे हमें सारे calculations incremental, differential करना है. Now what do you mean by incremental and what do you mean by differential? First of all, एक machine already है हमारे पास और उस machine पे हमें cash inflow आ रहा है. So हमें ये सोचना है कि ये machine पे हमारा cash inflow तो आ ही रहा है. अब एक नया मशीन लेंगे तो उसका भी एक कैश इनफ्लो होगा. तो हमें इन दोनों कैश इनफ्लोज को कंपेयर करना है और इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल फाइंड करना है कि डिफरेंशियल, फॉर एग्जांपल मशीन ए का 10,000 आ रहा है, मशीन ये रिप्लेस करके नया लेंगे तो नया वाले का 15 आएगा, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ 5,000. सो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल बेसिस पे करना है. एंड फाइनली हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि जो मशीन है उसे रिप्लेस करके नया लिया जाए कि नहीं. कैलकुलेशन तो एनपीवी करेंगे. अगर एनपीवी पॉजिटिव आएगा उसका मतलब है कि रिप्लेस करके हम थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं, तो येस. अगर एनपीवी नेगेटिव आएगा तो नो. अगर एनपीवी यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो बेसिकली यहाँ पे येस आंसर नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली होगा इनडिफरेंट, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता पुराना चले या नया चले, हम 1 रुपया भी ज़्यादा तो नहीं कमा रहे. अब के पहले हम एनपीवी कैलकुलेट करते थे तो क्या सोचते थे, ज़ीरो येस बिकॉज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमा रहे हैं, पॉजिटिव येस, नेगेटिव नो. यहाँ पे ज़ीरो इनडिफरेंट, पॉजिटिव येस, नेगेटिव नो. बट प्लीज़ सेट इन योर ब्रेन्स कि हमारा सारा कैलकुलेशन डिफरेंशियल होगा, इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल. मशीन ए इतना, मशीन बी इतना, डिफरेंस इतना. क्लियर है? हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. और ये लेवल के क्वेश्चंस थोड़े हाई होते हैं लेवल वाइज, तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना है इस पर. हैव अ लुक. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. MNP Limited is thinking of replacing an existing machine by a new machine which would cost rupees 60 lakhs. The company's current production is 80,000 units and is expected to increase to 1 lakh units if the new machine is brought. The selling price of the product would remain unchanged at rupee 200 per unit. The following is the cost of producing 1 unit of a product using both the existing and the new machine. The existing machine and the new machine and the difference. 80,000 units, 1 lakh units. Material, wages and salary, supervision, repairs and maintenance, power and fuel, depreciation, depreciation पे star mark करो guys, and allocated corporate overheads. Please फिर से allocated corporate overheads पे भी star mark. Next one. The existing machine has an accounting book value of 1 lakh and it has been fully depreciated for the tax purpose. It is estimated that machine will be useful for 5 years. The supplier of the new machine has offered to accept the old machine for 2 lakh 50. However, the market price of the old machine today is 1 lakh 50 and is expected to be 35,000 after 5 years. Now, so many values. एक एक को आराम से ब्रेक करेंगे. The new machine will have life of 5 years and a salvage value of 2 lakh 50 at the end of its economic life. Assume corporate income tax at 40%. Depre is charged on the rate of straight line basis for the income tax purpose. Further assume that book profit is to be treated as ordinary income for the tax purpose. The opportunity cost of capital is 15%. You are required to estimate 1. The net present value for the replacement decision. Should the company go ahead with the replacement decision? Suggest.
एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसके बाद तो आंसर लिख ही सकते हैं कि रिप्लेसमेंट करना है कि नहीं। ना दो मशीन्स की कहानी है और पॉइंट बाय पॉइंट ऑपरेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, इस क्वेश्चंस पे एक कंपैरेटिव चार्ट बनाता हूँ, एग्जिस्टिंग मशीन, न्यू मशीन। नाउ सी द चार्ट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर। सारे कैलकुलेशंस वैल्यूज यहाँ पे, दिस इज एग्जिस्टिंग, दिस इज न्यू। Is it correct? First thing, MNP Limited is thinking of replacing the existing machine by a new machine which would cost 60 lakh. MNP Limited is thinking of replacing an existing machine by a new machine. तो new machine का cost होगा 60 lakh rupees. Cost. New machine का cost 60 lakh. Correct? Next, the current production is 80,000 units and is expected to increase to 1 lakh units. Current production old machine चल रहा है तो हम 80,000 यूनिट्स बना रहे हैं। न्यू मशीन होगा तो हम प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स की करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आपका, पहले 80,000 यूनिट्स था, अभी 1 लाख यूनिट्स हो गया। If the new machine is brought, the selling price of the product would remain unchanged at 200 per unit. Selling price will be 200 per unit for existing as well as 200 per unit for new as well. Next one. The following is the cost of production of 1 unit of product using both. Cost of production, the cost of manufacturing per unit. This is the selling price, this is the cost price manufacturing per unit. This is per unit, even this is per unit I am saying. पर वो लोग हमें मटेरियल दे रहे हैं, वेजेस एंड सैलरी, सुपरविजन सबका अलग अलग दे रहे हैं, हम उसका टोटल कर ले पर यूनिट। एग्जिस्टिंग, चलो कैलसी निकालो, आप साथ में कैलकुलेट करो। 75 प्लस 51.25 प्लस 20 प्लस 11.25 प्लस 15.50। नाउ डेप्री पर यूनिट नहीं हो सकता है गाइस। डेप्री इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट, डेप्री इज ऑलवेज फिक्स्ड ना, तो यहाँ से डेप्री का टोटल हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, आफ्टर डेप्री उन्होंने एक और चीज़ दी है, दैट इज नोन एज अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। नाम पढ़िए आराम से, व्हाट डज दिस नेम टेल यू? अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। नाउ अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स का मतलब क्या हुआ? अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स, कॉर्पोरेट ओवरहेड्स है वो ये प्रोजेक्ट को अलोकेट किए गए हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये जनरल एक्सपेंसेस है जो ये प्रोजेक्ट को अलोकेट किया गया है। वो जनरल एक्सपेंसेस पूरे कंपनी के है, स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के नहीं है। और हम लोग जब भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं तो हम कोई भी जनरल एक्सपेंस का अलोकेशन एक्सेप्ट नहीं करें। क्यों नहीं करें? बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट, सो वी शुड इग्नोर allocated corporate overheads. Are we clear with that one? Because they are not specific to the project. Project का specific हो मुझे बोलो, general है मुझे मत बोलो। अगर general को हटाने के बाद भी अगर ये project profitability आता है, then we should accept it. Otherwise we can tell them no. Correct कि नहीं? So general allocated corporate overheads नहीं आएगा। चलो अब आप total करो, general corporate overheads को छोड़ दो और डेप्री को छोड़ दो और टोटल करो, और वुड रादर से कि 183.25 से 10.25 माइनस कर दे, तो आई विल गेट अ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट एट 173 फॉर एग्जिस्टिंग। न्यू का 165.5 में से 12.5 माइनस एंड 5 माइनस 17.5 माइनस 165.5 से 17.5 माइनस, आई विल गेट एन आंसर ऑफ 148। जब पुराना मशीन चल रहा है तो प्रोडक्ट को बनाने में 173 रुपीज़ लग रहे हैं, जब न्यू मशीन चलेगा तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 148 रुपीज़ लगेंगे। सस्ता हो रहा है, नया मशीन अच्छा लग रहा है, पर हमें इंक्रीमेंटल ढूंढना है। नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग मशीन हैज एन अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख एंड इट इज फुल्ली डिप्रिशिएटेड फॉर द टैक्स पर्पस। अकाउंटिंग बुक वैल्यू, अकाउंट्स में इनका बुक वैल्यू 1 लाख चल रहा है,
बट टैक्स पर्पस के लिए फॉर टैक्स इसका बुक वैल्यू 0 है. क्यों 0 है? बिकॉज इट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड. यस और नो? अकाउंट्स में, आज अकाउंट्स में जाके देखेंगे, कोई पूछेगा नई मशीन की वैल्यू कितनी है, एज ऑन टुडे 1 लाख, पर टैक्स पर्पस के लिए तो 0. और हमारा काम तो पूरा टैक्स के साथ ही चलने वाला है. डेप्री, उसका टैक्स इफेक्ट देखना है. सबके टैक्स इफेक्ट्स ही तो देख रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर. सो बॉस, फॉर मी इस असेट का वैल्यू 0 है. अकाउंटिंग बुक वैल्यू कोई मायने नहीं रखता. नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. करेक्ट. कंटिन्यूएशन, इतने सारे वैल्यूज दिए उन्होंने. देखिए आगे चलते हैं. द एग्जिस्टिंग मशीन हैज एन अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख and it has been fully depreciated for the tax purpose. It is estimated that machine will be useful for 5 years. The supplier of a new machine has offered to accept the old machine for 2,50,000. इसका exchange value बोलूं मैं? Exchange value 2,50,000 है. जो हमें नया मशीन दे रहा है ना, वो कह रहा है कि मैं आपको नया देता हूं, आप ओल्ड मुझे एक्सचेंज कर दो और मैं आपको ओल्ड का 2,50,000 देता हूँ. मीन्स इफेक्टिवली आई कैन सेल दिस मशीन एट 2,50,000 टुडे. कंटिन्यूएशन. द सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 2,50,000. हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन इज 1,50,000. द मार्केट प्राइस इज 1,50,000. फिर से हमें कंफ्यूज किए जा रहे हैं. अगर नया जो मशीन दे रहा है वो हमें एक्सचेंज वैल्यू 250 दे रहा है, तो मैं मार्केट में जाके क्यों बेचूं? आप उसको दोगे जो 2,50,000 हमें दे रहा है, या मैं उसको दूंगा जो मुझे 1,50,000 दे रहा है? कौन अच्छा होगा हमारे लिए? 2,50,000. ये वैल्यू तो मेरे लिए कोई काम की नहीं है. ये बुक वैल्यू तो मेरे लिए कोई काम की नहीं है. ये सारे वैल्यूज फालतू के दिए हुए. कंफ्यूजन है. The supplier of the new machine has offered to accept the old one for 250. However, the market price of the old machine is 150 and is expected to be 35,000 after 5 years. Market value after 5 years is 35,000. आज 50 है, after 5 years 35 है. After 5 years life. Is it clear? Continuation. The new machine has a life of 5 years. The new machine will also have a life of 5 years. Old machine भी 5 साल चलने वाला है, new machine भी 5 साल चलने वाला है. बढ़िया है. And salvage value of new machine will be 2,50,000. New machine को अगर हम 5 साल के बाद बेचेंगे तो 2,50,000 पे बिकेगा. Correct? मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग भी चालू नहीं की है. Assume corporate income tax to be 40%. The tax rate is 40%. 40%. Assume the tax rate at 40% and depre is charged at the rate of SLM. The depreciation in both the cases is as per SLM. Straight line method. Assume book profit is treated as ordinary income tax for the tax purpose. इसका मतलब समझाऊंगा मैं आगे चल के. And the opportunity cost of capital is 15%. That means COC. Opportunity cost of capital is 15%. का मतलब है इस प्रोजेक्ट का NPV आप 15% से निकालना. Opportunity cost of capital is 15%. Required NPV of the replacement criteria. NPV. I want to calculate something that is known as NPV. Now NPV, back to the table. याद है अपने को ये calculations NPV के? चेक कीजिए. अब सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं एक्चुअली. अब तक तो हम सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे गाइस. क्वेश्चन नंबर 28 का NPV निकालना है मुझे. NPV, PV inflow minus PV outflow. Inflow 1, recurring inflow 2, salvage value of asset 3, working capital. जब तक मैंने क्वेश्चन रीड किया है वहां पे तो वर्किंग कैपिटल कुछ है ही नहीं.
minus PV outflow. 1 cost of asset. So PV inflow minus PV outflow. 1 we get the answer. Replacement NPV. अगर पॉजिटिव आएगा तो yes, अगर ज़ीरो आएगा तो indifferent, और अगर नेगेटिव आएगा तो no. करेक्ट? टेक इट ऑन. वर्किंग नोट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो आई विल स्टार्ट विथ वर्किंग नोट नंबर 1. करेक्ट है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. ना वर्किंग नोट नंबर 1 पे हम लोग क्या ले रहे पता है? रिकरिंग इनफ्लो. अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है. रिकरिंग इनफ्लो डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे. ना हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट वन, I have got existing machine, that is old machine. This is my working note number 1, and I have got a new machine. एकदम आराम से कैलकुलेशन समझना. फर्स्ट, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. ओल्ड में 80,000 यूनिट्स बन रहा था, न्यू में 1 लाख यूनिट्स बनेगा. सेलिंग प्राइस दोनों का 200 है. कॉस्ट प्राइस ओल्ड का 173, अब टेबल से कॉपी कर सकते हैं. ओल्ड का 173 था और न्यू का 148 है. सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस इज 27 इज 52 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 80,000 इंटू 27. कॉन्सेप्ट समझ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? 80,000 यूनिट्स है, उसका हम 27 पर यूनिट प्रॉफिट बना रहे हैं. दैट कम्स टू 21,60,000. 10 लाख 1 लाख इंटू 52,000, दैट इज 52 लाख. क्या मिला ये? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट. पर कौन सा प्रॉफिट? ये जो हमें प्रॉफिट मिला, दिस इज नोन एज NPBDT. डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया इफ यू रिमेंबर. Net profit before depre and tax. Correct. Now 52 minus 21,60,000. 52 lakh minus 21,60,000. I'm getting an answer of 30,40,000. 30,40,000. This is known as differential NPBDT. Incremental differential. ओल्ड मशीन में मेरा NPBT इतना आ रहा था, न्यू मशीन में मेरा NPBT इतना आ रहा था, मैं इतना ज़्यादा कमाऊंगा. हर एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन ओल्ड न्यू एंड तक नहीं, हम NPBDT तक इंडिपेंडेंट करेंगे. ऑलवेज ये दिमाग में सेट करो. NPBDT तक अलग, नेट. यहाँ से अपना नॉर्मल कैलकुलेशन चालू हो जाएगा. दिस इज NPBDT. लेस डेप्रीशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा NPBT. लेस हम टैक्स करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा NPAT. हम लोग उसमें डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो. कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपको? हम NPBDT है, लेस द डेप्री BT, लेस टैक्स AT, ऐड डेप्री CF. बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे भी डिफरेंशियल पे काम करना है. NPBDT 30,40,000. पहले यहां तक इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन, ओल्ड न्यू फिर डिफरेंस. लेस द डेप्री. अभी ये NPBDT कितने साल चलेगा? 5 years. बिकॉज ओल्ड मशीन भी 5 साल चलने वाला है, न्यू मशीन भी 5 साल चलने वाला है. तो कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 5 साल की कैलकुलेशन होगी हमारी. करेक्ट है? बट ये ही NPBDT 5 साल चलेगा. सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5. डेप्री SLM है या WDV है? SLM. सो डेप्री भी सेम रहेगा, BT सेम आएगा, टैक्स सेम आएगा, AT सेम आएगा, सेम डेप्री ऐड होगा. कैन आई से CF विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द 5 years. तो मैं 5 साल कैलकुलेट नहीं करके, कैन आई से आई कैन डू द कैलकुलेशन फॉर 1 year and then multiplied by this CF by cumulative discounting factor for 5 years. Yes or no?
हाँ, पर अगर डेप्री WDV होता, इसके बाद का क्वेश्चन वैसा ही है, डेप्री WDV है, so the calculation will have to be done for 5 different years, 8 different years, whatever the life of the machine. बट यहाँ पे कर सकता हूँ. सेकेंड, अब ये जो डेप्री भी है वो भी डिफरेंशियल निकालना है. डिफरेंशियल मतलब न्यू का इतना डेप्री, ओल्ड का इतना, तो ज्यादा डेप्री कितना चार्ज कर रहा है. So it is depre of new minus depre of old. Always incremental differential is new minus old. New minus old. यहां पे भी आप देखें, it is new minus the old. एकदम क्लियर है. कैलकुलेशंस मेरे साथ करेंगे आप. यहां का कैलकुलेशन समझो आपको. into 173 I got 80 lakh, that is 80,000 into 27. I got 21 lakh 60, 52 lakh मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 3040. अब मैं डेप्री न्यू माइनस ओल्ड, न्यू का डेप्री स्टेटमेंट पे आइए जरा आप एक बार मेरे साथ. न्यू का डेप्री, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीनरी इज 60 lakhs, करेक्ट है. एंड द WDV ऑफ द मशीनरी, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 2,50,000. Cost price of the machine 60 lakh, the scrap value of the machine 2,50,000, life 5 years. तो इसका डेप्री will be 60 lakh minus 2,50,000 by 5 years. New machinery, new. Old, tax के लिए इसका book value तो nil है. It is fully depreciated for the tax purpose. No depreciation is to be charged on the old machinery at all. So see my calculation एक बार फिर से working note number 1 पे देखिए. डेप्री बोल रहा हूं मैं. डेप्री का कैलकुलेशन 60 लाख minus 2,50,000 divided by 5 year. This is डेप्री of new minus nil. This is डेप्री of old. Clean and simple. 60 lakh minus 2,50,000 divided by 5 year. I'm getting a depreciation of 11,50,000 minus the nil. Answer will be 11,50,000 minus 30,40,000. I will get 18,90,000 is NPBT. इसका tax 40% है, into 40% the tax is 7,56,000. ये 7,56,000 भी यहाँ से निकाल दे. So we get the answer of 11,34,000 plus the depreciation of 11,50,000. I get the answer of 22,84,000. What is 22,84,000? CF. एक साल का CF equal to सेकेंड साल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एवरीथिंग सेम. पूरा कैलकुलेशन एकदम आराम से. पहले न्यू, ओल्ड, डिफरेंशियल. डिफरेंशियल कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड. NPBDT आ गया डिफरेंशियल, माइनस डेप्री डिफरेंशियल. कॉन्सेप्ट समझा? माइनस डेप्री निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? NPBT टैक्स, NPAT डेप्री, वी गेट द कैश फ्लो. और अब इस कैश फ्लो कितने साल चलेगा? ये कैश फ्लो 5 years. सो दिस 2284 cumulative DCF will be equal to 22,84,000 multiplied by cumulative discounting factor for 5 years. Now, how much is cumulative discounting factor for 5 years? Factor दिया हुआ आपको 15% का, 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718, 0.4972. Please take a total of all this. क्या आ रहा है cumulative discounting factor आपका? 3.3522. Multiply 22,84,000 plus 2284 into 3.3522. I'm getting an answer of 76,56,425. 76,56,425 is my incremental recurring cash inflow. इसको टेबल में लिखे हम लोग. 76,56,425 recurring inflow. Working note number 1, 76,56,425.
Got it? This is working note number 1, recurring inflow. Working note number 2, very interesting concept. Salvage value of asset. यहाँ पे भी वही concept चलेगा. Salvage value, differential. Calculation देखो. Working note number 2, salvage value. स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, डिफरेंस पता चल रही है आपको स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू की? ओल्ड, न्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड 35, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू 2,50,000 माइनस WDV ऑफ ओल्ड. स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू बहुत डिफरेंट है गाइस. दे सेड ओल्ड को हम 35,000 पे बेच सकते हैं, उसका WDV तो जीरो है ऑलरेडी. इट इज जीरो फॉर द टैक्स पर्पस टुडे. सो इफ इट इज जीरो फॉर द टैक्स पर्पस टुडे, द WDV इज ऑलरेडी नील. आई विल हैव अ फुल प्रॉफिट ऑफ 35,000. 35,000 पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा 40% का. 40% का टैक्स होता है 14,000. तो माई सैल्वेज विल बी 21,000. हाउ 21,000? 35,000 में बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट पे 14,000 का टैक्स भरना पड़ेगा. 35,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 21,000. ये ओल्ड की कहानी बनाई मैंने. अब न्यू की कहानी 2,50,000, 60 लाख का मशीन था. SLM डेप्री चार्ज किया था. अगर डेप्री SLM चार्ज किया हो तो WDV of the machine will be equal to scrap value. That means my WDV will be 2,50,000. I'll have no profit, no loss. I'll have to not pay or reduce the tax on that. That will give me a salvage of 2,50,000. This machine has salvage of 2,50,000. This machine has salvage of 21, not 35. And the differential is 250 minus 21 is 2,29,000. 2,29,000. Did you understand the calculations everyone? फिर से एक बार. First, old 35 का था, WDV nil है, प्रॉफिट 35 आ गया, उसका टैक्स 14. प्रॉफिट पे टैक्स मतलब पैसा चला जाएगा. 35 में बेचा, 14 तो टैक्स चला गया, तो बचा कितना हमारे लिए? 21. न्यू 250 का है, उसका बुक वैल्यू भी 250 है, सो नो प्रॉफिट. 250 डिफरेंस 2,29,000. वन मोर थिंग, ये 229 आएगा कब? एट द एंड ऑफ 5 इयर्स. तो 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर भी लगेगा इस पे बॉस. 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आई विल टेल यू इज 0.4972 मल्टीप्लाइड बाय 0.4972. 2,29,000 multiplied by 0.4972 is equal to 1,13,859. Are we clear? 1,13,859. चलो, working note number 2, 1,13,859 plus 76,56,425. I'm getting a total of 77,70,284. This is my inflows. Outflow, cost of the asset, working note number 3. Working note number 3. The cost of the asset. Don't take a literal 60 lakh. बिकॉज ये भी डिफरेंशियल चाहिए मेरे को. वर्किंग नोट नंबर 3 देखिए. कॉस्ट ऑफ न्यू 60 lakhs. कॉस्ट ऑफ न्यू इज 60 lakh माइनस ओल्ड इज द डिफरेंशियल. नया सेट 60 का आएगा, पर अगर नया लेंगे तो पुराना बेच देंगे. अब पुराना बेचेंगे कितने में? टेबल पे आओ फिर से एक बार. सीधा टेबल. फर्स्ट वन, बुक वैल्यू 1 लाख है, मतलब बुक में 1 दिख रहा है, पर एक्चुअल उसका टैक्स के लिए वैल्यू कितना है? 0.
एक्सचेंज जो हमें नया मशीन दे रहा है वो हमारे लिए पुराना मशीन और पुराने मशीन का वो हमें 250 दे रहा है. आई एम गेटिंग 250 फ्रॉम हिम एंड द मार्केट वैल्यू इज 150. 250 पे उसे दे या मार्केट में जाके 150 पे बेचे. 250. नाउ व्हाट हैपेंस, सी द कैलकुलेशन हियर. आई एम सेइंग द एक्सचेंज वैल्यू इज 250. किसी पे भी टैक्स इफेक्ट मत भूलो गाइस प्लीज. असेट बेचोगे तो उसका प्रॉफिट लॉस और वो प्रॉफिट लॉस का टैक्स सोचना ही सोचना है. So 250 exchange value हुई minus the WDV, it is nil for the tax purpose. That gives me a profit of 250. बॉस, और अगर 250 का प्रॉफिट दिखाऊंगा अकाउंट्स में, उसका टैक्स मुझे भरना पड़ेगा 40%, दैट इज 1 लाख. So that will give me a salvage of only 2,50,000 minus 1 lakh is equal to 1,50,000. दिमाग लगाओ मेरे साथ. मैंने मशीन 250 में दे दिया, अकाउंट्स में वो 250 का दिया, उसके वजह से 250 का प्रॉफिट दिखा. 250 के प्रॉफिट पे मेरे को 1 लाख का टैक्स भरना पड़ा. तो 250 आया था, उसमें से 1 लाख टैक्स चला गया. सो लेफ्ट इज व्हाट, ओनली 1,50,000. दैट मीन्स यहां पे ओल्ड मशीन का वैल्यू मुझे सिर्फ 150 मिलेगा. एंड प्लीज डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने ये 150 लिया यहां पे. आई हैव नॉट टेकन दैट 150. आई हैव टेकन 250 ओनली, पर उस पे 1 लाख का टैक्स भरना पड़ा, इसीलिए 150 हो गया. नाउ 60 लाख का मशीन है, 1,50,000 ओल्ड की वैल्यू है, तो मेरे लिए डिफरेंशियल तो भाई 58,50,000 ही भरना पड़ेगा. सही है. चलो टेबल पे लिख देता है. कॉस्ट ऑफ द एसेट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूं 58,50,000 माइनस कर देता है 70,284 minus 58,50,000 is equal to 19,20,284. 19,20,284 is my NPV, net present value, and if it is positive, I will go ahead with the purchase decision. That means I should replace the machinery. यहाँ पे लिख रहा हूँ should replace. क्लियर, टू गुड. पूरा कॉपी करेंगे अभी आप. फर्स्ट पहले वो एनालिसिस वाला जो टेबल बनाया था मैंने वो कॉपी करेंगे, और फिर टेबल, फिर वर्किंग नोट 1 2 3. क्लियर है. इसके बाद एक क्वेश्चन उठाता हूं जहां पे डेप्री WDV चार्ज किया. कैलकुलेशन देखना, मजा आएगी करने की. पहले आप ये कॉपी कर लो.